दरवाजा तोड़ के सबूत ढूंढने का जमाना गया। अब साइबर क्राइम को रीच करना है। बट अगर आप चाहते हो कि कंट्रोवर्सी हो एंड द प्रोजेक्ट डजंट वर्क, देन द उसकी स्टोरी बैकलाइट में हो जाती है। आई एम श्योर कि जिन लोगों ने इतनी गालियां दी उसमें से 90% या 95% लोगों ने वो फिल्म भी नहीं देखी। एंड सीआईडी इज अ, आई वुड से, इज अ फिक्शनल शो वेयर ऑब्वियसली वी ब्यूटीफाई एवरीथिंग। ऐसा अक्सर असलियत में तो नहीं होता जहां पर आप थप्पड़ मारते हो और कन्फेशन शुरू हो जाता है। हाय, दिस इज पार्थ समतान एंड यू वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है पार्थ समतान। तो फर्स्टली पार्थ, वेलकम टू IWM बस। थैंक यू, थैंक यू। अगर बात किया जाए सीआईडी को लेकर, काफी आपको पसंद किया गया Yes. और उनके फैंस ने आपको स्टार्टिंग में ट्रोल भी किया गया। बिल्कुल। हाउ यू टेक ऑल दिस स्टफ टुगेदर एज एन एक्टर? In my life, thankfully, I'm a positive guy और मुझे पॉजिटिविटी ही मिली है। But yes, at first I was taken aback, and but then I sat and I understood. I analyzed कि such an iconic show going on since past 21, 22 years, not a joke. मतलब उतना तो आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है और उतने साल से आप इस फील्ड में भी नहीं है, तो यू हैव टू गिव इट टू देम। मतलब एक सर्टेन बेंचमार्क है, एक सर्टेन ऑडियंस है सीआईडी, दे हैव बीन वाचिंग एंड दे आर लेजेंड्स, दे आर वेटरन एक्टर्स एंड those are fixed characters. मतलब they live with them, and suddenly that character has been replaced or that character is dies and then other character comes. It's not easy, obviously, big role. So I was okay with that. Television का और rather say any project का timeline where an actor at the start is being I would say without knowing them is being criticized, and then once you start getting the hang of the character and all, अच्छा कर रहा है ये इतना नहीं, he's doing good यार, nice, good choice, ऐसा हो जाता है। Because I remember जब ये CID का suddenly people started appreciating my work, it took me back to कैसी यार ये, where starting के 5 episodes I was that monster Manik and I was doing all the evilish shit out there, and people were hating me. People were like writing मतलब they were abusing shit out of me, and that time, I, thankfully, I was not reading the comments, but my friends, my co-actors used to tell me, "अरे तेरे तो बजा रहे हैं, तेरे तो बजा रहे हैं," because that time they were like, Neeti or Nandini should be with him when he and they look together, and I'm like the monster. Why are you there in the show and all that? So of course I was young back then. I didn't understand कि मतलब कि इतनी maturity नहीं थी कि अरे यार if they are abusing me that means I'm doing good. वो वाली maturity नहीं थी जो अब है। तो अभी अगर मुझे ऐसे बोल रहे हैं, आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू बी इन देयर शूज एंड अंडरस्टैंड के व्हाई आर दे सेइंग दैट। सो या इट वाज गुड एंड आई न्यू कि मतलब उसमें भी हाउ मॉन्स्टर मानिक टर्न इनटू लाइक प्रॉपर मानिक, लविंग नंदिनी, एंड पीपल लव द कैरेक्टर सो मच एंड इट बिकेम एन आइकॉनिक कैरेक्टर टिल डेट। सो आई नो, गिव इट अ टाइम, people will start liking it. But when you got this offer for this character, was it always yes, or you gave a second thought? No, just because it was a cameo also. क्वेश्चन मार्क था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, सिंस इट वाज अ कैमियो आई थॉट आई शुड डू इट, बिकॉज टेलीविजन के लिए मेरा एक लाइन है जहां पर आई फील कि आई शुडंट कमिट सो मच कि मतलब बाद में मैं पछतावा करूं कि बाद में इफ आई हैव टू एंड माय दिस थिंग माय जर्नी, द शो शुडंट सफर। सो आई शुडंट गो बैक टू माय वर्ड्स। तो जब उन्होंने बोला कि 4-5 एपिसोड, अरे फिर तो कर ही लेंगे, तो क्या है, चलो देखते हैं। So yeah, I did it. फिर 4-5 episode got extended to 2 months to 2 to 3 months. And I was like, hey, 2 to 3 months is not a bad time. So it was fun. It was overall, I enjoyed the show. Every day is a new challenge, new beginning, and it's fun to be in that family. That family is so positive, so much in unity. They eat together. They share the same vanity room together. That is amazing. I've never seen it in my life. But they eat together. They spend everything together. मतलब they get ready together, they change their clothes together. So it is a different set, and I don't think you'll see such a set in other shows. And I think that is one important reason why the show has run for so long. Yeah, because there is so much of unity in the team. मैंने आपके कई सारे स्टोरीज देखे थे जब आप वो शो कर रहे थे, काफी मस्ती मजाक आपके साथ करते थे। तो कभी ऐसा हुआ कि आप नए नए गए हो, आपके साथ रैगिंग भी किया उन्होंने, या मस्ती में आपकी टांग खिंचाई की हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। It was not like I was junior. I'm sure they knew about me because the questions that they asked me, मुझे realize हुआ कि ये लोग गूगल कर चुके हैं। तो पर बात आपको सब जानता है। हाँ, I don't know. I mean, see, everyone is busy. I'm sure Daya sir or Abhijit sir or Shivaji sir mustn't be knowing because they are so much into their lives and everything. And the kind of genre that I have worked on has nothing to do with their genre. So हाँ, अगर मैं कोई, for example, कोई सिंघम फिल्म या शो करता है तो उनको उनके जहन में
आ जाता है कि हाँ ये एक इंसान है. जी. So I don't think they know about me, but yes, they googled it. When they googled it, they got to know अच्छा ठीक है, like fan following है, you have been appreciated, you've been loved by people. So yeah, there's no ragging as such, but yes, the breaking of ice was important, and I'm a friendly person, so I like to, especially when there are veteran actors around me, I like to know their stories, how incredible journey, what they have gone through. It's like a journalist, for example. Yeah. I want to ask interesting questions to them. मतलब, I whenever I sit between the takes, so I always ask questions to Daya sir or Abhijit sir, but I make sure those questions make sense. True. ये कुछ भी टाइम पास के लिए नहीं, मतलब वो दूसरा इंसान सोचे यार क्या पका रहा है, कितने सवाल पूछेगा. I don't want that to happen because I don't like bothering anyone, which is something I can also learn from it. That's all. पात अगर बात किया जाए ये शो की, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू विल टेक विद यू फॉर एवर, लाइक हर एक एक्टर से अगर कुछ चीज क्वालिटी आपने गेन किया होगा तो वो क्या होगा? बहुत कुछ है इस शो से, मैंने बहुत कुछ गेन किया है. टू स्टार्ट विद यूनिटी, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट यूनिटी, जो कि आपको मैं अगले शो में जाऊंगा नहीं मिलेगी. एवरीवन हैज देयर ओन entourage, their own demands, their own vanities, their own tantrums. So yeah, यहाँ पर मुझे लगा कि मेरे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है एज एन एक्टर. और जब मैं इस शो पर आया, मैंने देखा द वे द क्वालिटी, मतलब द स्टाइल ऑफ लाइफ दे आर लिविंग. मुझे लगा यार आई शुड ऑल्सो बी सिंपल, मुझे कुछ डिमांड नहीं करना चाहिए, अगर चुप बैठना चाहिए, बिकॉज फिर वो लोग सोचेंगे यार ये लोग डिमांड नहीं कर रहे, ये क्यों कर रहा है. सो इट्स नॉट नाइस, बट या इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज आई नेवर थॉट कि मतलब ऐसा इनका होगा. एंड द ऑरा दैट दे आर वेरी सिंपल, वेरी फन पीपल, दे क्रैक जोक्स, दे लाफ, एवरीथिंग. एक चीज मेरे अंदर बहुत ये थी कि इंटेंस शो है ये, कहीं मेरे अंदर हंसी ना छूट जाए, कहीं मैं कुछ बोल रहा बैठूं एंड दे विल बी लाइक क्या यार इसको, ही कांट टेक द कैरेक्टर सीरियसली, हाउ कैन ही बी एन एसीपी एंड ऑल. दैट आल्सो आई डोंट वांट टू हैपन. सो वो एक चैलेंज था मेरे लिए. सो रिहर्सल्स के टाइम में बहुत हंसता हूँ, बहुत रिहर्सल भी हो रहे हैं ना, मैं बहुत हंसता था, बहुत, बिकॉज आई नो ये रिहर्सल चल रहा है. टेक के टाइम आई फोकस. अगर बात किया जाए दरवाजा खोल तोड़ दो वाला वाज द आइकॉनिक डायलॉग फ्रॉम द सीआईडी शो, आपके सामने ये डायलॉग हुआ? मेरे सामने हुआ नहीं, एक्शन में हुआ सीधा, जहाँ पे दरवाजा तोड़ दिया. एंड हाउ वाज योर रिएक्शन दैट टाइम? Like before that, I had another line, like I would say another scene where I'm talking to Abhijit sir, and Abhijit. So there is this, मतलब I would say debate between old technology and new technology. मतलब वो बोलते हैं कि मैं अपने इन्फॉर्मर से जाके बात करता हूँ, शायद वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन यहाँ से ही मिल सकती है, साइबर से. That's why technology is there, and that's why we don't need to go places. वो जमाना गया. एंड देन इज लाइक नहीं नहीं, मुझे आज भी उन लोगों पर भरोसा है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप अपने तरीके से काम कीजिए, आप मैं मेरे तरीके से काम करता हूँ. एंड देन आई एम लाइक आप अभी भी ओल्ड स्कूल से हो, वो पुराना स्टाइल इस्तेमाल करते हो, दरवाजा तोड़ के सबूत ढूंढने का जमाना गया, अब साइबर क्राइम को रीच करना है. तो देन ही गिव्स दैट लुक, किसकी आइडिया काम आती है. सो या आई मीन आई हैड दैट लाइन ऑफ ओ माय गॉड, दैट्स एन इनोवेटिव लाइन, कि दरवाजा तोड़कर सबूत ढूंढने का जमाना गया, बट ऑब्वियसली दैट is an integral part of the show, and that will always be there. No, you have done OTT, you have done movie, you have done. I had another scene where Daya is about to slap someone. Okay, and that is the pattern of the show, and people know कि इसके बाद उसका confession. So he is about to slap, and I'm like Daya, and then I tell him to walk out of the room. He comes out. I'm like, if he's asking for a lawyer, he has the right. यू कांट जस्ट स्लैप एवरी, आप किसी को भी थप्पड़ मार के जबरदस्ती कुछ भी उगलवा नहीं सकते. अगर वो वकील मांग रहा है तो हमारे लिए परेशानी होगी, हम उसको अगर इनकार करते, सो लेट हिज लॉयर कम, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो. एंड टू व्हिच ही हैड दैट रिएक्शन, नाउ ही इज टेलिंग मी व्हाट टू डू. So that's the part of the show. Yes. But I enjoyed doing something which is different from see exactly what people were expecting. We did something different. True. So I'm glad that we did. नहीं तो मैं भी वहां आके बोलता कि दया दरवाजा तोड़ो, इट बी जस्ट अनदर कंपैरिजन और बढ़ जाता. Path, you have done OTT, you have done movie, you have done many top branded music. And to top it all, he's not being negative. He's not trying to challenge him. He's right in his place. Whatever he said is according to the law. So he's an officer where he comes by the books. He stays by the books. He knows what are the rules, what are rules and regulations.
And CID is I would say, is a fictional show where obviously we beautify everything. ऐसा अक्सर असलियत में तो नहीं होता जहाँ पर आप थप्पड़ मारते हो कन्फेशन शुरू हो जाता है. That's why we have cinema, and those are films, those are stories, and that's what we want to see. That's what we love watching. So yeah, reality is completely different. This character is into reality, and then he tries to meet reality with fictional. Yeah. That is how it is. Path, you have done OTT, you have done Yeah. TV, you have done movies, you have done music album with the top brands. हाँ. जब वापस टीवी पे आने की बात हुई तो आपने सेकंड थॉट दिया बिकॉज एक्टर्स जो एक बार मूवी के इसमें चले जाते वो वापस नहीं आना चाहते. आपके लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग था बिकॉज नो क्वेश्चंस मार्क्स भी क्रिएट हो जाएंगे. व्हाई पार्थ वांट्स टू कम बैक ऑन टीवी? इज दैट एनी line drawn by yourself? There is nothing as such. Yes, it's true. I wanted to take a break from television. और 5 साल हो चुके थे. Obviously, I was in two minds. Let's be honest, I was in two minds. Should I get back to TV? Should I do? Because films take a lot of time. Or to be honest, web series or web shows also, it's more like you're starting your second innings. Okay, they don't know your fan following, and it doesn't matter to them. If there are good shows happening around, they don't care who you are, what you have done in television. You start off fresh, and that also means the luxury and the kind of fame that you have received, or the payment also, is not equal to what you used to get in television. So are you ready for that? Are you ready to take up that challenge? And it's not easy. That's why a lot of actors are comfortable continuing with television, because it's paying them well. They're getting the comfort zone, and plus they're financially they're strong. And those, so every I would say every cinema, like every platform, be it films or television, they have their perks, they have their advantages, disadvantages. Now it's up to you. What do you want? And if you're ready to take up the challenge, there will be a lot of obstacles. Are you prepared for it? That's how it is. So coming back over here, CID was a limited period of time. Hence I did it. कि मतलब वो कम समय के लिए था, इसलिए मैंने बोला कि इतनी कमिटमेंट तो मैं दे ही सकता हूँ, तो मेरे लिए जरूरी था. बट बाकी अदर एक्टर्स कमिंग बैक टू टेलीविजन, इट ऑल डिपेंड्स कि उनको कितना करना है, क्या करना है. बिकॉज कमिटमेंट आई एम श्योर इज एन इशू फॉर अ लॉट ऑफ एक्टर्स, क्योंकि वो एक ही चीज पे बाउंड नहीं होना चाहते. जबकि आपको पता है कि दुनिया में या आपके इंडस्ट्री में इतनी सारी चीजें चल रही हैं. You want to keep doing another different stuff. Like through music videos. I don't know how many music videos I did, but I met so many people. I went to so many places. I worked with so many directors. So प्लस मजा आता है. एक स्टोरी 3 दिन आप जियो, उसको मजा करो, गाने के पीछे एंजॉय करो. ये नो डायलॉग्स. और वो ट्रेंडिंग पे भी होता है. तो या मतलब पहले होता था कि हमने तुम्हारा ये शो देखा, वो कैरेक्टर देखा. अब कोई भी रैंडम, अरे मैंने तुम्हारा वो गाना देखा. So yeah, that's a new, and songs are something which obviously remain through our lives. If people are connected with the songs, then to next level. That's what we want. Even like as an actor, you want to play as a cop. You have that wish list. You want to play a cop. You want to play a detective. You want to play a spy. And similarly, you want to be in songs, because Bollywood is all about music. So yeah, you want to be the integral part of the songs, because that remains forever. Yes. आपने एक वेब शो किया था, मैं हीरो बोल रहा हूँ. यू फील कि अगर वो कोई अलग प्लेटफॉर्म पे रिलीज होता, कोई और बड़े प्लेटफॉर्म पे, दो इट वाज रिलीज इन अ गुड प्लेटफॉर्म, उससे भी अगर बढ़कर प्लेटफॉर्म पे होता तो वो वेब सीरीज को काफी पसंद किया जाता, या उसकी जो रीच होती वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती? डू यू फील दैट? यस, ऑफ कोर्स. वी फील के यार यहाँ पर इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ, काश वहां पर होता. सो दैट बिकॉज आई नो, आई गॉट टू नो लॉट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, यार कौन से प्लेटफॉर्म मैंने देखा ही नहीं. इट गोज अननोटिस्ड. ठीक है. But the platform that I was on, they had done their part, they had promoted it well, they had done their job, and every show, every project has their own destiny. वो तो अपनी अपनी डेस्टिनी वो कहीं जाकर पहुंचेगी, आपको नहीं पता. तो अनफॉर्चुनेट था कि वो बहुत लोगों ने नहीं देखा या ये, बट आई एंजॉय बीइंग अ पार्ट ऑफ सच. और उसी के लिए I feel that I entered into this industry, that I get to play different characters. That such a character was not expected out of me, and which I challenged myself and I did it. Yeah. So I'm glad, and I hope कि अगर उसका सीजन 2 ना बने, ऐसा कुछ एक डिफरेंट कैरेक्टर वाला शो मिलेगा तो बहुत चैलेंजिंग हो, जैसे कि ये CID. It was a challenge. Every day I go there and I stand there as ACP is a challenge for me. True. True. आपका एक और मूवी था जो काफी अच्छा स्टोरी था, लेकिन काफी कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द घूम गया था, हमारे भारत. अगर बात किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी मूवीज आती है लेकिन कंट्रोवर्सी में गिर जाती है, देन काफी सारे बैकलैशेस होने स्टार्ट हो जाते हैं. हाउ यू सी एज एन एक्टर? It's very unfortunate, and
I feel the message that it's all about how what you want to reach out to the audience. आप मैसेज क्या देना चाहते हो? जो फिल्म बन रही थी और जब मैं कर रहा था, आई वाज अ पार्ट ऑफ, तब एक मैसेज था, तब एक ब्यूटीफुल मैसेज था ऑफ अ मदर who and of a daughter who's trying to save her mother of being killed, and that was a beautiful message, and that's how I got connected to them. I never got connected to the film because it will be a controversial film, because it will be between religions and all. That was never my idea, my agenda. But the film was showcased, or the people who saw it, they took it in such a way कि यार this is मतलब ये जानबूझकर भड़काना हो रहा है, या फिर जानबूझकर ये हमको चाह रहे हैं कि हम भड़क जाए, इश्यूज क्रिएट हो जाए, टारगेट करें या not. That was very unfortunate. So it is very important to for people, like for producers, for everyone, for all the person, not only हमारे 12 के, it's very important कि आपने जिस मैसेज आपको जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो ऑडियंस तक वहीं पहुंचे, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो गया तो बहुत आप थिन लाइन पे हो, कुछ भी हो सकता है. सो दैट्स द लेसन आई एम श्योर एवरीवन लर्न ऑन द फिल्म कि अगर आप अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ोगे तो फिर वो अच्छा ही होगा. बट अगर आप चाहते हो कि कंट्रोवर्सी हो एंड द प्रोजेक्ट डजंट वर्क, देन द उसकी स्टोरी बैकलाइट में हो जाती है. आई एम श्योर कि जिन लोगों ने इतनी गालियां दी उसमें से 90% या 95% लोगों ने वो फिल्म भी नहीं देखी. वो तो बोलते हैं ना आजकल ट्रेंडिंग के साथ आप चलो. करेक्ट. तो डू यू फील कि आजकल एक्टर्स लोग के साथ यही होता है? आई वुड से इट वाज अ मार्केटिंग फेलियर, आई वुड से, एंड दैट इज नॉट इन आर्टिस्ट हैंड्स. ये हमारे कुछ सजेशन आ सकते हैं बट आइडियाज तो उन्हीं के होते हैं. सो आई थिंक दैट वाज अ कंप्लीट मार्केटिंग फेलियर वेयर आप कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपकी फिल्म में कुछ और है, तो वो गलत है. आई फील दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. नॉट आई वाज नॉट हैप्पी विद. आई इनफैक्ट रीच आउट टू प्रोड्यूसर्स, आई इनफैक्ट रीच आउट टू डायरेक्टर कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमारी आइडिया नहीं थी फिल्म में, ये हम नहीं पहुंचाना चाह रहे थे. एंड देन देयर वर पीपल हु वर सेइंग कि अरे कंट्रोवर्सी तो अच्छा होगा, लोग मतलब डिस्कस करेंगे, पीपल नो अबाउट द फिल्म, नहीं तो लोग पिक्चर थिएटर में दिन देखने आएंगे. बट आई फील इफ यू मेड अ गुड स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी, पीपल विल जस्ट कम irrespective of what. लाइक केरला स्टोरी, आई एम श्योर प्रमोशंस उसके उतने नहीं हुए थे या तुमने, बिकॉज दे न्यू कि ये फिल्म बहुत, we are showing some मतलब I would say path breaking cinema which can take which can if we try to show it to the audience before, it can backfire. So let's keep it the way it is. Let people watch it. If they like it, if it becomes viral, it will be good for us. And that's what I expected from this film कि मतलब let people watch it. अगर वो चली तो चली जो हमको लगता है, और नहीं चली तो ठीक है. But they wanted कि पहले से ही कि no, there. That was very unfortunate. बात आपकी जर्नी की अगर बात किया जाए, more than decade you gave to this journey, how you see yourself as an actor? Do you pat yourself or you push yourself more harder and harder? As an actor, I pat myself. As Parth Samtan, I want to push myself harder and harder because yes, I have done limited projects. If you see past 10 to 11 years, I've done like 6 to 7 projects. For those 6 to 7 projects, out of which they have worked for good, मतलब बहुत अच्छे चले हैं, especially on television. मतलब अगर मैं 3 projects की बात करूँ जिस पे मैंने काम करा है, 3 have been like legendary shows, iconic shows. First show has become an iconic show. So I feel I'm proud enough to be part of such shows. So I believe in quality over quantity. And मुझे बस एक शो से जम करके दूसरे शो में नहीं जाना, एक फिल्म से जम करके दूसरे फिल्म में नहीं जाना. तो मेरा पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए. और एक होता है ना कि व्हेन एक टाइम आता है जहाँ पर एक बहुत डल पीरियड होता है कि आप बस घर पे बैठे हो, आप वेटिंग कुछ आ जाए. फिर काम ऐसा आता है कि एक आ गया, उसी के साथ दूसरा भी आ गया, उसी के साथ तीसरा भी आ गया. वो मुझे पसंद, हाँ, बट वो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे अपना 100% यहाँ देना है यार. मुझे ये खत्म करके 10 दिन वहां पे देना है, फिर वो खत्म करके फिर वापस आना है. देन आई फील आई एम नॉट गिविंग माई 100%. तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार मैं यहाँ से करके वहां जाऊँ, वहां से करके यहाँ जाऊँ. बट यस, a lot of actors do that and they are good with it. People don't come to know. But I myself feel कि नहीं यार, I'm not being honest to the work. Yeah. So I need to completely focus on one project, then move on to another. बट आप काम के बीच में ब्रेक भी लेते हो और मस्त घूमने के लिए जाते हो. आई लव योर ट्रैवल स्टोरीज.
काफी जगह आपको घूमना पसंद है, अब तक कौन सा बेस्ट ट्रिप आपका रह चुका है? बिकॉज आई नो यू वेंट टू टुमारोलैंड आल्सो एंड अदर कॉन्सर्ट्स एंड आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। आपका पसंदीदा जगह है, आई थिंक वही आप है। काफी बार गए हो हाँ आप? यार, नहीं काफी बार नहीं, एक ही बार गया हूँ, बट मैंने ट्वाइस यू ऐसे वेंट? नहीं, आई वेंट टू अदर फेस्टिवल्स, ओके। मायामी में ऐसे गया था, फिर कोचेला गया था, तो कैलिफोर्निया में। बट बॉटम लाइन इज, आई ट्रैवल टू मेक मेमोरीज, आई ट्रैवल टू अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, मीट अननोन पीपल, create beautiful memories, and all of them are beautiful. So if you ask me favorite place, it is unfair to ask, but whenever I think of travel places, डिफरेंट लोकेशंस के मुझे डिफरेंट मोमेंट्स याद आते हैं। तो आई फील लाइक समटाइम्स आई फील लाइक गोइंग देयर, समटाइम्स आई फील लाइक गोइंग हियर, और फिर और भी दुनिया बची है, और भी कितने सारे जगह एक्सप्लोर करने हैं। तो आई फील नहीं, इस बार नई जगह जाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई मेक श्योर कि मतलब कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। तो या आई थिंक लाइफ इज, मतलब वो होता है ना, अरे छोटी दुनिया है, अरे छोटी, अरे नहीं है छोटी दुनिया, 200 से ज्यादा देश है, कभी घूम के देखो तुमको पता चलेगा, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेरिका जाता हूँ मेरी बहन से मिलने, और मोर देन 70% ऑफ अमेरिका, उन्होंने अब पूरी अमेरिका देखी नहीं है, और उनके लिए लगता है वही दुनिया है। तो नाउ दिस इज, आई थिंक ट्रैवलिंग टीचेस यू अ लॉट, मतलब योर परसेप्शन चेंजेस, योर बिहेवियर चेंजेस, you become more calmer, you become more happy, relaxed, and traveling or holiday is a required, because you can't say कि अरे, I know everyone has goals, everyone has to reach at the top, but taking a break is very important for your health, for your well-being, for your family, for your surrounding, because आप एक ही तरीके से सोचने लग जाते हो, एक ही इसमें, और घुसे पड़े रहते हो, घुसे पड़े रहते हो, घुसे पड़े रहते हो, तो you give stress to your body, you become मतलब unaware of the surroundings, which is not good. So it is important to live a life, or it is important to, yes, work harder also, but it is important to take breaks also. आई कभी बोलती है अब शादी कर लो, घूमना बंद कर दो? कभी बोलती है? अरे, it is there in every conversation, and then I have the same answer, that yes, once everything, uh, let's get in place, because I'm not saying career wise, because I have realized, now I have realized कि एक point था कि certain, मतलब पिछले साल तक कि नहीं, I want to reach there, I want to do this, एक बार ये हो जाए तो फिर ये हो जाए, बट मुझे बहुत लोगों के एडवाइसेस, सजेशन, और एंड देन सीइंग द लाइफ फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, कि लाइफ विल गो ऑन, life will keep happening as it is, what you want to do, how you want to live, you do that, वो अपने आप चलेगी, you never know कि और अच्छी चलेगी। So let's not jump to the conclusion कि मैं उसके बाद ही ये करूंगा, it is not, आपको पता नहीं वो कब होगा ना, अगर वो 10 साल लगेंगे तो फिर आप वो 10 साल के बाद जब फाइनली होगा, और फिर तब आप करोगे, आपको लगेगा शिट यार लेट कर दिया है, ये ना हो। तो नाउ आई रियलाइज्ड कि आई वांट टू फर्स्ट सेटल माय पर्सनल स्पेस इन टर्म्स ऑफ हाउ आई एम लिविंग। सो फॉर एग्जांपल, मेरा नया घर है, वेयर आई वांट टू गेट माय मदर, और वो नए घर का भी काम चल रहा है, तो जैसे ही वो इंटीरियर्स का काम खत्म होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मदर टू शिफ्ट, इट्स अ बिगर हाउस, एंड फाइनली आई कैन बी विद माय मॉम, एंड देन वी कैन टेक दिस नेक्स्ट स्टेप, थिंक अबाउट इट एवरीथिंग। सो या, स्टेप बाय स्टेप। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू थैंक यू, हाउस। थैंक यू, थैंक यू। पार्थ, लास्टली आई वांट टू नो, सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है, काफी फैन बेस है आपकी, स्ट्रॉन्ग है। आपका एक फैन था जो बिफोर द सोशल मीडिया भी था, फ्रॉम द स्टार्टिंग डे ऑफ कैसी है यार, अगर बात किया जाए वहां पे, कैसी एरिया तो सोशल मीडिया एक साथ आ गया था, मतलब तब तो वो बिगनिंग था, वहां पे इतना पहले वो नहीं होता था, अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, अब तो वो देखा जाता है कितने आपकी फैन फॉलोइंग है, कितने सारे फॉलोअर्स भरे पड़े हैं आपके पेजेस में। डज दिस अफेक्ट हैज एन एक्टर? बिकॉज कभी कभी जज भी किया जाता है ना, अगर ये एक्टर के इतने फॉलोअर्स है तो इसको ले लेते हैं प्रोजेक्ट में। वो तो उनका कॉल है ना, बट आई डोंट थिंक, सी द थिंग इज, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। I don't think an actor which has X number of fan following, like a huge number of fan following, can help in a project. Yes, music videos, it does create an impact, I feel, because I've seen it. But जहाँ पर एक लॉन्गर फॉर्मेट की बारी आती है, जहाँ पर फिल्म्स की बारी आती है, जहाँ पर वेब सीरीज की बारी आती है, it's a challenge for any influencer, any person, any YouTuber to be there as an actor. It's a challenge and it's not easy. So I know people take that, but later on it you come to know कि मतलब वो दिखता है वो सब, समझ में आ और जाता अगर है। हाँ, तो उसमें से बहुत कम लोग हैं, जैसे भुवन बाम, he excelled in his show also in OTT. तो ऐसा नहीं कि सब चलेंगे, बहुत चुनिंदा चलेंगे, बट जरूरी नहीं है कि हम उसके अकॉर्डिंग जज करें।
I know a lot of actors who are doing good, who has less number of fan following. मतलब मेरे बराबर तो कुछ भी नहीं, but I look up to them. I want to learn with them. I want to work with them, and they don't have these number of followers on their Instagram. Yeah. Because these numbers can't predict your acting or anything for that matter. True. So I feel one shouldn't be judging through this and then giving you work accordingly. So yeah, it's that as simple as that. Thank you so much, Yeah. Parth, for giving a precious time and Thank all you. the best. Thank you so much.